Good afternoon, class. Today we will start our new part, that is excretion. So what is excretion? Excretion is the process of removal of metabolic waste material and the other non-useful substances from our body. Okay, so we will first study about the excretion in humans. ठीक है, तो excretion हमारा क्या है? It is the process of removal of the metabolic waste. जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालना. ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. सो ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स हैव एन एडवांस एंड स्पेशलाइज सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. एक पूरा फुल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर. बट प्लांट्स लैक अ वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन द एनिमल्स. ओके, प्लांट्स में वो फुली डेवलप नहीं होता. They do not have special organs for excretion, and thus the excretion in plants is not so complex. Now, the excretion in the unicellular organisms. Unicellular organisms are those organisms which contain only one cell. Okay, so in those organisms such as amoeba and bacteria, the waste product are removed by the simple diffusion method. एंड दैट इज बाय देयर बॉडी सरफेसिस. तो जो उनका बॉडी का सरफेस होता है उसमें से ही उनका वेस्ट रिमूव हो जाता है. सो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट एक्सेस थ्रू देयर टाइनी ऑर्गेनेलीज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है. The undigested food in the unicellular animals is excreted when the food vacuole merges with the general body surface and opens to outside. है ना. अब ये थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो जो फूड वैक्यूल होता है वो किसके साथ मर्ज कर जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है? विद द बॉडी सरफेस. जब बॉडी सरफेस के साथ जुड़ जाता है तो बॉडी सरफेस से वो बाहर की तरफ निकल आता है. Now we will study about the excretory system of humans. Okay, which is the main part of this chapter. The excretory system in humans include a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, urethra. Okay, as you can see in this diagram also, there are a pair of kidneys, है ना. दो kidneys आपको देखने को मिलेगी, ये जो red color के हैं. ठीक है. Then there are long tubes on the either side of kidneys. वो है आपका pair of ureters. Okay. Then the ureter is connected with the urinary bladder. Okay, then at the last after the urinary bladder that there contains the urethra. Okay, and the main waste product of the excretory system, or the main waste product that the excretory system excrete is urine. So this is the diagram of human excretory system. As you can see, a pair of kidneys you can see. Okay, then a pair of ureter also you can see. It is a thin tube like structure which arises from the kidneys and joins the urinary bladder. Okay, then third part you will have the urinary bladder, and the fourth we have the urethra. So what are kidneys? Kidneys are the paired kidneys are the main excretory organs of the body. Okay, दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसी से ही हमारा जो भी बॉडी का फ्लूइड होता है वो फिल्टर होता है. ओके, सो दे आर द मेन फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स. So kidneys perform various functions such as filtering waste materials, medications, toxic substances from the blood. ओके, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स है वो हमारी बॉडी में से उसको फिल्टर करता है. देन इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी. व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? इट इज द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ओके, देन इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी. आयन की कंसंट्रेशन को भी बॉडी के अंदर बना के रखता है. देन इट रेगुलेट्स द पीएच ऑफ द बॉडी, कि पीएच जो फ्लूइड का पीएच होता है उसको ये बना के रखता है. देन इट्स हेल्प इन the regulation of extracellular fluid volume, and the last it helps in the secreting hormones that helps the produce red blood cells and promote the bone health and regulate the blood pressure. Now
we know that the nephron is the main structure in the kidneys. So what is the nephron? Nephron are the structural and the functional unit of the kidneys. They are the main part of the kidneys. Okay. Now we will study about the nephron. What are the major functions of nephron and its structure? So each kidney has millions of nephrons and it forms the basic structural and the functional unit of the kidney. Okay, so each kidney has millions of nephrons. बहुत सारे nephrons आपको देखने के मिलेंगे एक ही किडनी में, और वो किस लिए हेल्पफुल रहते हैं? फॉर द फिल्ट्रेशन. ठीक है, ताकि फ्लूइड में से जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको बाहर निकाल सके और यूजफुल प्रोडक्ट को वो दोबारा बॉडी में भेज सके. ओके, सो ईच नेफ्रॉन हैज अ टू पार्ट्स. कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? द माल्फिजियन बॉडी एंड द रीनल टिब्यूल. ओके, सो all the parts we will study in the next slide. So Malpighian body is made up of cup-like structure called as Bowman's capsule. Cup-like structure के अंदर हमारा Bowman's capsule हमें देखने को मिलता है. I will show you in the diagram. So here you can see the Bowman's capsule. It is a cup-like structure. Okay. So आपको दिख रहा होगा एक जाल सा है ना, जो ग्लोमेरुलस है. ठीक है, वो उसके अंदर बंद है. So Bowman's capsule is a cup-like structure. Okay. Then we have which encloses a bunch of capillaries called as glomerulus. है ना, अभी हमने डायग्राम में जैसे देखा कि ग्लोमेरुलस कहाँ पे है? Bowman's capsule के अंदर बंद है. Encloses in a bunch of capillaries called as glomerulus. Okay. They together filter the waste materials along with many useful substances. तो इनका मेन काम क्या है? To filter the waste materials. Okay. Then the renal tubule has regions called as proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. अगर हम डायग्राम में देखेंगे renal tubule में तीन regions आते हैं. proximal tubule जो आपको एक नंबर में देखने को मिल रहा है. ठीक है, दो नंबर में आपको देखने को मिल रहा है loop of Henle with the capillary network, है ना. सेकेंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है the distal tubule. ओके, सो these regions, अब ये इन regions का क्या काम है? These regions absorbs back useful substances into the blood and also filter remaining waste substances. तो क्या कहना की कोशिश कर रहा है कि जो useful substances है वो उसको दोबारा से कहाँ भेजते हैं? ब्लड के अंदर भेजते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं? एंड ऑल्सो फिल्टर द रिमेनिंग वेस्ट सबस्टांसेस. जो भी हमारे जो रिमेनिंग वेस्ट सबस्टांसेस है उसको दोबारा से वो फिल्टर करने का काम करते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज द आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ दीज नेफ्रॉन्स? दैट इज कॉल्ड एज यूरिन. है ना, यूरिन के रूप में वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर आता है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन इन विच यू कैन सी at the first end you can see the proximal tubule. Okay, the proximal tubule is a tube-like structure which is connected to the Bowman's capsule. Okay, the Bowman's capsule is filled with the glomerulus. Okay, so glomerulus is enclosed inside the Bowman's capsule. It is a network of arteries. Okay, ये फिर अब आपकी आर्टरीज नीचे तक देखो वेन्स के साथ ब्रांचिंग में है, और आपके जितना भी वेस्ट आपका प्रोडक्ट है उसमें से क्या होता है? लूप ऑफ हैनले में जाता है. लूप ऑफ हैनले इसको क्या करता है? जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको दोबारा से ब्लड की कैपिलरीज में भेजता है. ठीक है, ब्लड में भेजता है. जो नॉन यूजफुल प्रोडक्ट है आपका डिस्टल एंड के द्वारा, डिस्टल ट्यूब्यूल के द्वारा आपका कहाँ चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस? ओके, हीमोडायलिसिस हमारा क्या कब होता है? when the kidneys fail. It is also known as artificial kidney. Okay, हीमोडायलिसिस में हम कब यूज करते हैं? जब हमारी किडनीज किसी वजह से फेल हो जाती है. ओके, so the process is known as, the technology is known as dialysis. Okay, अब डायलिसिस में हमारे पास क्या क्या होता है? It uses a machine filter called as dialyzer or the artificial kidney. Okay, and what is the function of this dialysis machine? It is to remove the excess water and salt and to balance the other electrolytes in the body and remove the waste product of the metabolism. ठीक है, जो काम हमारी किडनीज करती है वही हमारा काम ये डायलिसिस मशीन कर रही है. ठीक है, and the blood from the body is removed and flowed through a series of tubes. अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है. कह रहा है द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है और उसको गुजारा जाता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स. ठीक है,
series of tubes which is made up of semi permeable membrane. Okay, फिर क्या होता है, अ डायलिसेट फ्लोज ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विच ड्रॉज इम्प्योरिटीज थ्रू द मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इससे क्या होता है हमारा कि जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो हमारे ब्लड के द्वारा चले जाते हैं ब्लड के साथ, और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या होता है, डायलिसेट में हमारा क्या होता है, जो डायलिसिंग हमारा फ्लूइड है उसमें आ जाता है और उसको हम दोबारा से वहाँ से निकाल लेते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड, है ना, और आप उसमें से देखोगे द ब्लू कलर लाइन इज शोइंग दैट द ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट. ओके, द बॉडी ब्लू कलर लाइन शोज द ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट. ठीक है, ये हमारा फिर आगे ब्लड को पंप किया जाता है, उसमें हमारा इसने दिखाया है कि इसमें हेपरिन पंप दिया जाता है. हेपरिन पंप क्या है, इट इज़ हेल्पफुल इन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग होने से उसको बचाता है. ठीक है, ताकि ब्लड हमारा क्लॉट ना हो. जैसे ही हमारा फिर ब्लड हमारा एंटर करता है डायलिसर के अंदर, इसमें सीरीज ऑफ ट्यूब्स है, काफ़ी सारी ट्यूब्स है जो, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, जिसमें क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, तो वो उसमें से हट जाता है और क्या होता है, डायलिसर में आ जाता है. ठीक है, और जो क्लीन ब्लड है हमारा फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है. आप दो बॉक्स इसमें साइड में देख रहे होंगे, वन इज फॉर यूज्ड डायलिसेट एंड अदर इज फॉर द इनफ्लो, कि जो नया हमारा डायलिसेट फ्रेश डायलिसेट है उसको हम इसमें डायलिसर के अंदर डाला जाता है ना. So the used and the fresh dialysate is regularly maintained in the dialyser. Okay. In the other diagram also you can see the blood is pumped out from the body, है ना. जैसे आपको देखने को एरोस के थ्रू देखिए अगर आप, वहाँ से वो डायलिसिंग ट्यूब फ्लूइड के अंदर जाता है जहाँ पर सीरीज ऑफ ट्यूब्स आपको देखने को मिलती है. ठीक है, इसके अंदर हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. अब क्या है, इसमें से देखिए एरो से हमें दिखाया गया है कि जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है दैट इज द वेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में से हमें निकला है. तो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड इज एक्सक्रीटेड आउट, और हमारा यहाँ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड हमारा रेगुलरली पम्प्ड आउट होता रहता है. ठीक है, और हमारा ये फिर ब्लड हमारा प्यूरिफाई होके दोबारा से क्या होता है, दोबारा से हम उसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ dialysis, that is the artificial kidney process. Okay, now how the excretion happens in the plants. The cellular respiration or the photosynthesis and the other metabolic activities reaction produce a lot of excretory products in plants. अब कौन कौन से आपके excretory products है प्लांट्स के अंदर, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर जो कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान निकलता है, एंड वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान आपके निकलते हैं. ओके, देन प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, एंड दोज टू gaseous waste products are oxygen and carbon dioxide. Oxygen is mainly released during the process of photosynthesis, and the carbon dioxide is released during the process of respiration. Okay, now these are released with the help of stomatal pores, है ना. आपने पता है कि पत्तों के नीचे, जो लीव्स के नीचे हमारे स्मॉल ओपनिंग्स होती है, that is known as stomata. So excretion of these wastes, gaseous waste, are through the stomatal pores. Okay, now the oxygen released during the photosynthesis is used for respiration, while the carbon dioxide released during the respiration is used for photosynthesis. Okay, now the excess water is excreted by the process of transpiration. ओके, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो हमारा एक्सेस वाटर रिलीज होता है कहाँ से, प्लांट्स से. ओके, देन देयर आर वेरियस बाय प्रोडक्ट दैट आर रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स एज अ वेस्ट, जैसे कि हमारे गम्स है, ऑयल्स है, लेटेक्स है, रेजिन्स है. दीज आर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स that are from plant parts such as barks, stems and leaves. Okay, then there are few examples of excretory products of plants that are oil from the orange, eucalyptus, jasmine, latex from the rubber tree, okay, papaya tree, and gums from the acacia. Okay, so these are some of the waste products that are excreted from the plants. Okay, this is one of the pictures showing that the gum is released from the tree bark.
Okay, and in the other picture it is showing that the rubber is excreted from the plant tree. Okay, now you have to perform these questions and you have to prepare your own notes. ठीक है, इसमें से आपने नोट्स बना लेना. ठीक है, you have to make it in your own notebook. ठीक है, फेयर नोटबुक में आपने बनाने हैं and you have to perform all the questions. Okay, so this was the चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. आपका लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो बी प्रिपेयर और अपने नोट्स अच्छे से बनाना. ओके, गुड बाय.